Hello student, this is KK Bhatt here. Dear students, today I am going to discuss about the inequalities around the world. In the previous video, I have taught you democracy and types of democracy. I also tell you what is different between direct and indirect democracy. In that particular video, you can see that there are many problems in our societies as people faced inequalities around the world. There are many discrimination you can see around the world. The people as well suffered much. There are many great leaders you can see in our countries. They also decided to remove the inequality from the societies. They tried much, but they can't able to success. The great leader, as you can't as you called Dr. Bhimrao Ambedkar, that man is also depressed from the discrimination on the basis of caste. Dr. Bhimrao Ambedkar and the committee members had also give the right to the weaker people so that they can make their future bright on the basis of those. You know well that Abraham Lincoln also fought to destroy the discrimination between white and black. He has been killed because of creating equality among the societies. As same as you can see a great leader, Nelson Mandela. He was the president of first black president of South Africa. You know well that that man is highly educated, but he felt a lot of discrimination, a lot of inequalities living in their societies. Even that Mahatma Gandhi, you know Mahatma Gandhi, when he was in South Africa, he was sent out from the compartments because of in that compartments only white people can travel, blacks are not allowed. So on the basis of you can see that our society is just filled with inequality and discrimination. Dear students, today I am here discussing about inequality around the world. Here we can discuss about two great social reformer, Aung San Suu Kyi. You know well that she belonged to the Myanmar, where she has been kept in jail. And second is Martin Luther King Jr. Just here we see how these people fight to provide the inequality, to provide the equality among the society. In this sequence, I am just going to read here. See, people all over the world have faced and are still facing some kind of inequalities or discrimination in some places. I think that शायद ही कोई दुनिया में कोना ऐसा होगा जहाँ पर रहने वाले मनुष्य इनइक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार न होते हो।
ये हमारे समाज का एक अंग बन चुका है, एक सोसाइटी का अंग बन चुका है। फिर भी एज ए wise people we can try to remove such type of discrimination among the societies. तो वही कह रहे हैं, people all over the world have faced and are still facing some kind of inequality and discrimination. In some places, there have been people who have stood up against this injustice. So when there is injustice, there is discrimination. Not undoubtedly there is injustice. जब अन्याय होता है तो कोई न कोई ऐसा वीर पुरुष, ऐसा नेता हमारे बीच में पैदा हो जाता है जो इस असमानता को, जो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को तोड़ने का काम करता है। तो दिस हैव बीन, ये देयर हैव बीन पीपल हु हैव stood against this discrimination. One such courageous lady has been relentlessly fighting for the establishment of democracy in her country, Myanmar. Let us know more about her. अब आपको मैंने बताया कि आंग सान सू की ये म्यांमार में रहती हैं, ये वहाँ की प्रेसिडेंट भी बनी हैं। वहाँ की जो आर्मी रूल था उसका उसने अपोज किया था। यद्यपि इनकी फैमिली जो इंग्लैंड में रहती है, इफ़ शी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, शी कैन स्पेंड हर लाइफ देयर्स एंड लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। बट व्हेन शी सॉ द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिज कंट्रीज which we call Myanmar, he decided to stay there and fight against discrimination, against cruelty. तो अभी भी आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में म्यांमार में क्या है, इनको जेल में डाल दिया गया है और वहाँ पे अभी भी राष्ट्र प्रशासन है। तो डे स्टूडेंट्स, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रीड मोर अबाउट आंग सान सू की। आंग सान सू की अब आप देखेंगे यहाँ दिया है फर्स्ट लाइन, द पायनियर ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन म्यांमार, आंग सान सू की entered the field of politics in 1988। अब आप समझ सकते हो, मतलब बहुत लंबे समय बाद नहीं, अभी 1988 में इन्होंने म्यांमार को पूर्णतः डेमोक्रेसी दिलाने के, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए 1988 से में इन्होंने म्यांमार की सेना को ज्वाइन किया, आर्मी पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। शी वॉज विजिटिंग हर एलिंग मदर इन म्यांमार। ये चूँकि ये इंग्लैंड में थी, ठीक है, तो ये जो है अपने बीमार माँ को देखने के लिए जब म्यांमार आती हैं, तो जब उनकी कंडीशन, तब वो यहाँ के लोगों की कंडीशन को देख करके वो रुक जाती हैं और डिसाइड करती हैं कि सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रूल ऑफ जनरल नी विन, ठीक है, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो अपोज करेंगी। तो व्हेन पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रूल, ठीक है, जब लोग विरोध करेंगे उस ऑप्रेसिव रूल का, तो ऑन 26 अगस्त 1988 आंग सान सू की एड्रेस 500,000 पीपल एट ए मास रैली इन सपोर्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय ए मिलिट्री गवर्नमेंट कॉल्ड जुंटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 500,000 पीपल को, उन लोग 50,000 लोगों को उन्होंने एड्रेस किया था एक रैली में और लोगों का आह्वान किया था कि आप लोग संगठित हों और इस जो रूल है, जो हिटलर रूल है, इसके अगेंस्ट खड़े हों, इसकी खिलाफत करें। तो उसके बाद चूँकि आर्मी शासन था वहाँ, फिर आर्मी जो आगे आती है उस मोमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है कि एड्रेस 500,000 पीपल एट मास रैली इन support of a democratic government that had been overthrown by a military government called the junta. In September 1988, Aung San Suu Kyi formed the National League for Democracy. उन्होंने एक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक
आप जैसे पार्टी होती है, आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, उस तरह की उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी एंड बिकम एज जनरल सेक्रेटरी, और उसकी वो जनरल सेक्रेटरी बन गई। इन 1989 द गवर्नमेंट प्लेस सू की अंडर हाउस अरेस्ट इन यंगन, ठीक है। तो जो है उसको नज़रबंद करना बोलते हैं, ठीक है। तो उनको अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा। वहाँ जो आर्मी शासन था, आर्मी रूल था, उसके द्वारा इनको घर में ही बंद कर दिया गया। In September, Aung San Suu Kyi formed a National League for Democracy and became its General Secretary. And in 1989, government placed Suu Kyi under house arrest in Yangon. She was offered freedom only if left the country, but she refused. तो उनसे सामने उससे बात किया, मिलिट्री वाले ने बताया भी कि आप को आज़ादी दे दी जाएगी, आपको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, घर में अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर आप ये देश छोड़ करके चले जाएं। लेकिन वो क्या, उन्होंने मना कर रखा है, नो, विदाउट गेटिंग फ्रीडम ऑफ आवर नेशनल पीपल, ऑफ आवर नेटिव पीपल, ऑफ आवर नेशनल पीपल, वी कांट लिव दैट प्लेस। तो वो उस जगह को छोड़ने वाली नहीं थी, तो उन्होंने इस तरह से रिफ्यूज़ कर दिया। इन द 1990 इलेक्शन शी वॉज नॉट अलाउड टू कंटेस्ट इवन दो द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ओन मैनी सीट। मतलब 1990 में उनको इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट जीती। द मिलिट्री गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। तो इन 1991 शी वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़, और गवर्नमेंट जो मिलिट्री शासन थे उसने रिफ्यूज़ कर दिया, और इसी आधार पर 1991 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। बट शी वॉज नॉट फ्रीड फ्राम हाउस अरेस्ट, लेकिन उनको नज़रबंद करके रखा गया। द अवार्ड वॉज एक्सेप्टेड बाई हर सन विथ हर प्राइज मनी। जो अवार्ड था उनके सन ने उसको एक्सेप्ट किया। सी इस्टेब्लिश हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार, और उस पैसे से उन्होंने इस्टेब्लिश किया हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट फॉर म्यांमार। अब देखते हैं, in 1995, due to pressure from various countries of the world, San Suu Kyi was freed from house arrest, but her movements were restricted in 2000. She was again put under house arrest in 2009. A United Nations body declared her detentions illegal under Myanmar own law. Finally, in 2010, she was freed from house arrest in May 2012. She contested election and became the member of parliament. फिर वो क्या बन जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हैं। अब इसके बाद देखो, फॉर मोर ऑन हर लाइफ डेडिकेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार। Check. It is a kind of discrimination based on the color of the skin. The white skinned people consider the black skinned people inferior and treat them very badly. तो उसके पीछे आप देखेंगे कि ये एक साइट दिया गया है, आप चाहें तो उनके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद एक प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन जो कलर के आधार पर किया जाता था, जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इसी कारण जो ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर वो जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, और उनको साथ बुरा बर्ताव करते थे। तो इस तरह से एक जो वीर लीडर आप कह सकते हो, ब्रेव लीडर, जिन्होंने मिलिट्री सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, वाइट के खिलाफ आवाज़ उठाई, इक्वलिटी की बात की, और उन्हें बहुत सारी यातनाएं भी, कष्ट भी झेलने पड़े, उनको जेल में भी जाना पड़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. led a movement against racial discrimination in the U.S. The dark-skinned people are the black faced many discrimination and were denied all right. अब देखो, मार्टिन लूथर की बात किया जाए तो इन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन की आवाज़ के अगेंस्ट यूएस में आवाज़ उठाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब्राहम लिंकन साहब भी जो जाति प्रथा थी, जो स्लेवरी सिस्टम था, उसको ख़त्म किया।
तो वहाँ पे भी क्या था, जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और वो बैड ट्रीटमेंट देते थे ब्लैक पीपल को, और उनसे बहुत ही स्लेब स्लेब की तरह से उनके साथ व्यवहार करते। जैसे मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर decided to fight for their right and become the leader of the civil rights movements in 1964. He was awarded the Nobel Peace Prize. और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उस मूवमेंट में शामिल हुए, जैसा उन्होंने डिसाइड किया था, और लास्ट में उनको भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर फर्स्ट एक्सपीरियंस रेसल डिस्क्रिमिनेशन व्हेन हिज वाइट नेबर्स रिफ्यूज टू लेट हिम प्ले विद देयर फायर। पहली बार उन्होंने अनुभव किया जब एक वो पड़ोसी लड़का था जो गोरा था, उसने उनको खिलाने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ ही वॉज ब्लैक। Another occasion he was traveling by bus with his teacher when the driver asked him to stand up and let two white people have their seat. तो जब बस में यात्रा कर रहे थे तो जो कंडक्टर था उसने क्या किया, किंग जॉन मुथर को खड़ा कर दिया और उसके स्थान पर दो वाइट पर्सन को सीट पर बैठा दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट सच इनजस्टिस। तो उसी से मार्टिन किंग जूनियर ने डिसाइड किया कि वो इस प्रकार के इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे। मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑल सच इनजस्टिस एंड इनक्लूडिंग देयर कंबाइंड एफर्ट हैव रिजल्टेड इन द erections in of equalities, establishment of democracy as the most popular form of government in the world। जैसा कि माना जाता है कि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्म है। आप देख सकते हैं here giving some difficult meaning, you can read this meaning, okay। तो now your topic is over, okay। I hope you will understand the more about Martin King Luther and Basil